Okay, good evening, students. Today is a big day for you also, and Indian cricket team also Champions Trophy is going on. तो अब उनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारा तो अच्छा ही होगा. तो this question is sent by Aditi Gurvi. I will share the screen. I will show you, and then we will start. Just a minute, students. और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए होता है, हेजिटेशन होता है. So I will try to clear your all the doubts. So the first question asked by Aditi Gurvi. Yes, the screen is visible. Just give me a thumb, everyone. Thumb देके बताओ कि yes, screen is visible. Chat box में आप टाइप कर सकते हो. Yes, yes, yes. Thank you. So the question is, exterior angle of regular polygon having n sided is more than that of the polygon of n square sides by 50 degree. Find the number of sides of each polygon has. Okay. So exterior angle of regular polygon has n sided. दो पॉलीगॉन है यहाँ पे, एक की साइड से n, एक की साइड है n स्क्वायर, और दोनों के एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस है 50 डिग्री. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन. दिस इज द क्वेश्चन. So we will start. I will share the screen. Okay. So we have the formula. Exterior angle of regular polygon. The formula is exterior angle of regular polygon is equal to 360 upon number of sides. Okay, so there are two polygons. एक पॉलीगॉन है n साइडेड वाला और दूसरा है n स्क्वायर साइडेड वाला. So exterior angle of n sided polygon is equal to 360 upon n. This is the equation number 1. Second, exterior angle of n square sided polygon is equal to 360 upon n square. This is the second equation. The question is that exterior angle of regular polygon having n sided is more than, यानी ये बिगर है किससे, n स्क्वायर वाले से. तो डिफरेंस कितना है 50 का. So 360 upon n minus 360 upon n square is equal to 50 degree. This is the equation. ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला. So students, if you observe carefully, दोनों का न्यूमरेटर 360 है. Here the 360 न्यूमरेटर और यहाँ पे भी 360 है. तो we will take 360 कॉमन. 360 कॉमन लेते तो ऊपर कुछ नहीं होता है, तो there is 1 always. 1 upon n minus 1 upon n square is equal to 50 degree. Now 360 this side multiplication है, तो whenever it cross the side divide में हो जाएगा. तो 1 upon n minus 1 upon n square is equal to 50 upon 360. तो 0 0 cancel. Now if you observe the denominator same होना चाहिए. यहाँ पे n square है, यहाँ पे n है, तो we will multiply numerator and denominator by n. तो फर्स्ट का हो गया न्यूमरेटर n upon n square. Second, as it is a 1 upon n square is equal to 5 upon 36. Now denominator is same, तो न्यूमरेटर को माइनस करते हैं. n minus 1 upon n square is equal to 5 upon 36. Now just do the cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे
36 goes that side, it become 36 n minus 1. इस साइड 5 n स्क्वायर गया वो साइड में. दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लाई बाय 36 n. ब्रैकेट में है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 36 इंटू एन 36n, 36 इंटू 1 दैट इज 36, एंड दिस वन इज अ 5n स्क्वायर. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक साइड में शिफ्ट करते हैं. दिस वन इज 0 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर minus 36n and 36 become plus. So we can arrange this one is a 5n square minus 36n plus 36 is equal to 0. This is the quadratic equation. अभी इसे solve करना है हमें. So the rule is that, rule क्या है? Whatever the first value and last value को multiply करना है. So it is a 5n square into 36. Whenever we multiply it become 180n square. अब 180 के फैक्टर्स आने चाहिए. वी हैव टू फाइंड दो ऐसे फैक्टर आने चाहिए कि उसका मल्टीप्लीकेशन -36 आएगा. ओके, सो अभी हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 180 होगा. मल्टीप्लीकेशन शुड बी 180 और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 36 आएगा. अब ऐसे नंबर कौन से हैं? तो अगर हम लोग देखते हैं 30 इंटू 3, 30 इंटू 6 करेंगे तो इट बिकम 180. तो इफ वी टेक -30 एंड देन -6, -30 इंटू -6 करेंगे दैट इज प्लस 180. एंड जब दोनों ऐड करते तो होगा -36. आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. सो वी विल डू, हम लोग यही दो फैक्टर लेंगे. दैट इज 5n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 6n plus 36 is equal to 0. Take the group first two और last two. क्या कॉमन है? फर्स्ट में 5 and 30 है. 30 is a multiple of 5. 5 into 6 30 होता है. तो take 5n कॉमन. So this become n minus 6. लास्ट टू में क्या कॉमन है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 36 मीन 6 into 6 है. टेक -6 कॉमन. ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज होगी. दैट बिकम n minus 6. So this bracket is same. So n minus 6 in one bracket and whatever outside bracket के बाहर जो है वो दूसरे bracket में आएगा. So n minus 6 is equal to 0 और 5n minus 6 is equal to 0. So n whenever we shift this 6 that side तो 6 होगा plus और यहाँ पे भी होगा that is 5n 6 plus. But 5 again we shift that is of 6 by 5. ये फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन में साइड हो ही नहीं सकती है. नॉट पॉसिबल. सो क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. सो एक तो आ गया 6, दूसरा है n स्क्वायर. तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन is equal to 6 and number of sides of n square sided polygon is equal to n की वैल्यू 6 है. मीन 6 का स्क्वायर 6 6 दा 36. सम सॉल्व. स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? अगर समझ में आया तो यू टाइप करो. Just type you if you understood. Take the screenshot if you want. हाँ, मराठी वाले में हिंदी मराठी इतना बोलते है, उर्दू में नहीं है. मैं हिंदी में बात करता हूं तो सबको समझ में आएगा. n से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग, बट मैंने जो मेथड बताई है आपको वो सबसे इजीएस्ट वाली मेथड बताने की कोशिश की है. कि एग्जाम में आपके पास बहुत सारी मेथड है, लेकिन जितनी सिंपल, जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो दोज हु हैव एनी डाउट चैट बॉक्स में आप डालो, या इफ यू हैव एनी एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप वो भी वहां पे कर सकते हो. सो आप मुझे जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे.
जिसे भी जो भी क्वेश्चन में डाउट आहे यू कॅन. यस साईराज, मराठीमध्ये हिंदी बोललं तर राजा तुला मराठी समजेलच. तुला डाऊट असेल तर तू क्वेश्चन टाक तिथे, तुला ऑटोमॅटिकली तिथे हे मिळेल. एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स लेने. यस, एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं. यस. सो विच प्रॉब्लम यू वांट? 3.4 में से हम लोग स्टार्ट करते कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली. आई विल टेक ग्राफिकल मेथड. यस, वी विल डू दैट वन. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एपी का एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, एक एसएन वाला एक टीएन वाला. सो पता चलेगा कि टीएन कब लेना है, एसएन कब लेना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स. यस, विल टेक दैट वन ऑल्सो. मराठी मीडियम वाला राजा हिंदी मध्ये बोलतो, तुला समजून जाईल. जस्ट अ मिनिट. हा, शेअरिंग द व्हाइट बोर्ड. यस, आदिति ने एक क्वेश्चन भेजा है. आदिति, वी विल डू आफ्टरवर्ड. पहले हम लोग ना इनका लेते हैं, बाकी लोगों को जो सिंपल क्वेश्चंस है उसको पहले हम लोग कवर कर लेते हैं. Yes, screen is visible. If visible, type V in chat box. Yes, thank you. So the question first ही लेते हैं हम लोग. On 1st Jan 2016, Sanika decided to save 10 rupees. Then 11 on second day, 12 on third day. She decided to save like this. Then on 31st of December, what would be her total saving? उसकी total saving हमें करनी है. तो सानिका ने यहाँ पे क्या किया है, first day we can write that is T1 or we can write A also. First day उसका saving है 10 rupees. Second day that one is a T2, that is of rupees 11. Third day her saving is rupees 12. तो अगर हम लोग देखेंगे उसका डिफरेंस कितनी है, फर्क कितनी है राजा? The difference is 1 rupees. तो हम लोग लिखेंगे difference is rupees 1. अब क्वेश्चन क्या बोला उसने कि 31st दिसंबर को what would be her total saving. टोटल सेविंग पूछा है उसका, ये नहीं पूछा है कि 31 को कितना पैसा सेव करेगी, ये पूछा है 31 को उसके कितने पैसे सेव हो जाएंगे. जब टोटल हमें चाहिए देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एसएन. एंड 31st ऑफ जैन बोला है तो नंबर ऑफ डेज हो गए 31. सो नंबर, तो फॉर्मूला एसएन इज इक्वल टू एन बाय 2 इज इक्वल टू 2a प्लस n minus 1 and that is d. So as 31, so 2 value of a is 10, n की वैल्यू है 31 minus 1 और d की वैल्यू है यहाँ पे 1. So this 31 by 2 as it is, 2 into 10 that is 20 plus 30 minus 1 that is a 30 into 1 that is 30 only. 31 by 2, 20 plus 30 become कितना होगा, 30 plus 20 become 50. अब 50 देखेंगे हम लोग, दैट इज न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 25 जा, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 5 जा 25 बचे 2, 25 3 जा 75 और 2 77. ये रुपीज में आएगा. सो दिस इज योर आंसर. लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हर टोटल सेविंग Sanik, therefore
Sanika's total saving in month of Jan is equal to ₹775. तो स्टूडेंट जब भी वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें स्टेटमेंट में आंसर लिखने, इट कैरी मार्क्स, इसको मार्क्स होते हैं, तो हमें वो याद रखना है. Sorry, the question is not asked for the 31st of the Jan, it is of 31st of the December. मैंने कुछ अलग ही क्वेश्चन देख लिया. सो अगर 31st दिसंबर का आ गया स्टूडेंट्स, गुड, तो अगेन a इज इक्वल टू 10. वी विल, ये अगर जैन मंथ का 1 महीने का है तो ये करना है, लेकिन पूरे साल का पूछा है उसने. सो द फर्स्ट 10 रुपीज सेव किया है, सेकेंड डे 11 है, थर्ड डे 12 है, तो डिफरेंस इज अगेन 1. एंड उसकी सेविंग उसने पूछी है ऑन 31st ऑफ December 2016. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रिक है, अगर ये लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज होते हैं 366. अभी लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करना है, व्हाटएवर कोई भी एक ईयर है, अगर वो 4 से डिवाइड होता है, 2016 है, ये 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 5 20, देन वी हैव टू टेक 2 नंबर्स, 16, 4 4 16. तो अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो इट इज अ लीप ईयर. अगर लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज 366. सो अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ 6 लेना है और टोटल सेविंग वो पर्टिकुलर ईयर की हमें लिखनी है. सो Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1, and that is d. So the S 366 divided by 2, 2 into that is 10 plus n की वैल्यू है 366 minus 1 and the value of d is 1. So डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 1 जा, so डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा and 2 3 जा, that is 183. It is 183 bracket, this is 20 plus this become 366 minus 1, that is 365. So we have 183 और ये होगा 385. Now we have to multiply. अभी हमें ये फटाफट मल्टीप्लाई करने सीखना है, तो तुम्हें जो जो टेबल इजीली आते हैं वो फटाफट करो. इतना बड़ा तो टेबल नहीं आता है. 385 into 183, just multiply. 3 5 are 15, 1 24, 1 25, 2 carry, 3 3 are 9 and 11, 0, 8 5 are 40, 8 8 are 64, that is 68, 6 carry, 8 3 are 24 and 6 30, and by 1 5 8 3, 5 8 13 1 14, 1 carry, 10 1 7. So total saving that is 70,455. So students आपको बाद में स्टेटमेंट लिखना है लाइक द प्रीवियस, कि बाबा उसकी टोटल सेविंग 70,455 है. तो स्टूडेंट्स डोंट, अब लास्ट मिनट में आप हॉट क्वेश्चंस के ऊपर मत जाओ, मेरा रिकमेंडेशन है तुम लोगों को, क्योंकि लास्ट में 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं. 3 क्वेश्चन में से 101% 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक से होंगे. डू द सॉल्व एग्जाम्पल कीजिए, उसके साथ तुम लोग प्रॉब्लम सेट करो, बस हो गया. अभी हॉट क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नया कुछ करने जाते हो एक दिन पहले तो पुराना वाले हम लोग भूलने लगते हैं. सो द बेटर ऑप्शन, डू द सॉल्व एग्जाम्पल. आपने जितनी मेहनत की उसी को रिवाइज कीजिए. ऐसे ही क्वेश्चन आते, जैसे तुम लोग ने देखा होगा पहला क्वेश्चन जो आदित्य ने पूछा था वो भी थोड़ा हॉट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए फिर उसका फॉर्मूला पता है तो ही हम लोग कर सकते हैं. नया कुछ नहीं करना है, नहीं तो पुराना भी भूल जाते हैं. एक और हम लोग अगर यहाँ पे कर सकते हैं, ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन लेते हैं. यस, जीवाराम ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 2.3 प्रॉब्लम सेट एनी सम. 2.3 प्रैक्टिस सेट. ओके, 2.3 प्रैक्टिस सेट एनी क्वेश्चन.
तुम लोग जब टाइप करते रहो तो फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज ओके। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जिससे भी जो भी डाउट है आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डालो, तो फिर पता चलेगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे क्या लेना है। ओके चलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वी विल, आई एम गोइंग टू रब दिस वन। या स्क्रीन इज विजिबल, जस्ट टाइप वी, वी फॉर विजिबल। यस, ग्राफिकल मेथड आई विल टेक आफ्टरवर्ड, इसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन लेता हूँ। सो इसमें के ना दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के, तो फर्स्ट वन लेते हैं हम लोग, दैट इज एक्सरसाइज 2.3। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हियर द फर्स्ट रूल, हमारे पास यहाँ पे पहला रूल ये है कि जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो जो नंबर है जिसके साथ कोई भी, यस, जिसके साथ कोई भी लेटर नहीं है, उसको पहले तो हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 20, इसको शिफ्ट कर दिया। नाउ हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म को शिफ्ट कर दिया। हमें यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी, तो उसके लिए फॉर्मूला है, भले टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट बोर्ड के एक्सपर्ट ने बोला है कि ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें फॉर्मूला था, और बोर्ड के एक्सपर्ट ने बोला है, मॉडरेटर ने बोला है फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला है थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब हाफ एज इट इज आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मींस एक्स के साथ जो नंबर प्रेजेंट है। अभी एक्स के साथ क्या प्रेजेंट है मिडिल टर्म में, अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जहां पे कुछ नहीं रहता है वहां पे वन रहता है ना, हम लोग बोलते हैं जहां पे कोई नहीं है बाद में बचाएगा कौन, भगवान बचाएगा। तो जहां पे कोई नहीं है तो वहां पे वन है और प्लस साइन है, तो हम लोग लिखेंगे वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी वन से हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हाफ, और हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, तो हमारा थर्ड टर्म आ गया 1/4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लिखना है एडिंग 1/4 बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड करना है उसको। तो अभी क्या होगा, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब आया 1/4 इज इक्वल टू, दूसरे साइड में क्या है 20, इसमें भी ऐड करना है 1/4। अब ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हमें कंडेंस फॉर्म में लाना है। कंडेंस फॉर्म में बोले तो उसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए उसकी मेथड है, जो फर्स्ट टर्म है, स्टूडेंट ध्यान देना इसके ऊपर, हाँ इंपॉर्टेंट है, ये बाद में लोगों को समझ में नहीं आता कैसे लिया। जो फर्स्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर रूट लेना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है एक्स। मिडल टर्म होता है उसकी साइन लेनी है, और जो लास्ट टर्म होता है थर्ड टर्म, जो अभी हम लोग ने किया 1/4, उसका स्क्वायर रूट लेना है। वन का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसको क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। फिर से रिपीट करता हूं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म की साइन, और थर्ड, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म की साइन, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। बस इतना करना है और ब्रैकेट का स्क्वायर कर देना है, बात खत्म। अभी सेकेंड साइड है, एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, तो पहले इसका एलसीएम कर दिए, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 जा होता है 80/4 प्लस 1/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक्स प्लस, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखो 4, और ऊपर 81 आएगा। अब अगर देखोगे वो दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 2 किसका, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसको भी होल ब्रैकेट स्क्वायर करो, इसको भी होल ब्रैकेट स्क्वायर करो। अब क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2, बट जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन देनी है। जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो सेकेंड साइड में जहां पे नंबर्स है, वेरिएबल है, वहां पे दो, एक प्लस एक माइनस साइन, और लिखो 9/2, और लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट्स। अब क्या करना है, सेपरेट करना है, एक्स प्लस इज इक्वल टू 9/2 और
x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -9/2। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/2 को शिफ्ट करना है। 1/2 प्लस है तो दूसरे साइड क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे माइनस है तो दूसरे साइड में भी वो माइनस होगा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 9 माइनस 1 दैट बिकम 8/2। और दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 10 -10/2। अभी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं तो 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा, बट दैट इज -5। तो x की वैल्यू एक हो गई 4, दूसरी वैल्यू हो गई -5। तो योर सॉल्यूशन सेट लिखना है हमें, दैट इज 4 and -5। अंडरस्टूड? जस्ट टाइप यू इन चैट बॉक्स। यस एवरीवन, सबके मैं डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। इसके पहले ना अभी मैं ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट बार बार पूछ रहा है तो आई विल सॉल्व दैट वन। फिर हम लोग ना यहाँ पे आते हैं। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट शूट 3 2 1। आई एम गोइंग टू रब दिस वन। So graphical method, first exercise may be the question asked for 4 marks. So whatever the स्टार मार्किंग वाला क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश करता हूं तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो। ओके, देन चैट बॉक्स में जिसके आ रहे हैं मैं सबके क्वेश्चंस ले रहा हूं। डोंट टेक टेंशन, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो। द क्वेश्चन इज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 1 सॉल्व ग्राफिकली। सो 2x - 3y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन ये फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो हमेशा हमें क्या करना है, y को एक साइड रखना है, रिमेनिंग वैल्यूज को अदर साइड शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है 3y नेगेटिव है तो पहले हम लोग क्या करते, 3y को शिफ्ट कर देते। सो 2x के बाजू में लाते, 4 आएगा माइनस 3y दूसरे साइड गया। अब 3 को हम लोग दूसरे साइड में शिफ्ट करते, डिवाइड में चले जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2x - 4/3। Okay, understood? Just type u in the chat box. Yes, histogram I will explain after 2 questions. So students क्या होता है ना, अभी ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, ग्राफ प्लॉट करना है तो मेरा सजेशन तुम लोगों को रहेगा हमेशा ग्राफ का क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। लेकिन अगर करना ही है तो सबसे आखिरी में करना, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि हमें सब पता होता है, बाद में याद आता है, स्केल पेंसिल शार्पनर इरेजर हमारे पास नहीं है, पेंसिल शार्प नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। या ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, एक्स की वैल्यू हमें जो चाहिए हम लोग ले सकते हैं, बट कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्लॉट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 आया तो न्यूमरेटर में ऐसी वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे एक्स की कि ऊपर का आंसर ना इधर 3 आना चाहिए या 3 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी 3 के टेबल में आने वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जहां पे हमें मिनिमम 3 वैल्यूज लेनी है, मैक्सिमम 4 आप ले सकते हो। अब हर एक टीचर अलग अलग बताएगा, बट बोर्ड का स्टैंडर्ड रूल है टेक्स्ट बुक को देखो, 3 मिनिमम वैल्यूज बोलिए टेक्स्ट बुक में। तो कुछ भी डाउट है किसी के भी ऊपर, फॉलो द टेक्स्ट बुक। y इज इक्वल टू 2x - 4। अब मैं क्या करता हूं ना, x की वैल्यू माइनस लूंगा, क्योंकि अगर -1 से 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 होगा, एंड -2 और -4 क्या हो जाता है, -6। सो आई विल टेक 2 -1। किसकी वैल्यू ली है मैंने, x की वैल्यू ली है, तो x की वैल्यू क्या ली है मैंने, -1। ठीक है, तो दिस बिकम -2 -4/3, दैट बिकम -6/3। 1 जा 2 जा, योर आंसर -2। -2 दोनों आंसर क्या आ गए, होल नंबर में आ गए। प्लॉट करना इजी हो जाता है। फिर यही टेबल पहले कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं। सो अगेन द फॉर्मूला y इज इक्वल टू 2x - 4/3। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि वैल्यू क्या लेनी है।
अगर मैं 5 लेता हूं तो देखो 5 टू जा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। तो हम लोग 5 ले सकते हैं, जस्ट टेक 5। सो 2 के से मल्टीप्लाई होगा 5 4। देन हमेशा तुम्हें थोड़ा ना स्ट्रेच करना पड़ेगा खुद के माइंड को। 10 माइनस 4/3 दैट बिकम 6/3। 1 जा 2 जा 2। y की वैल्यू आई 2, तो 5 आ गया, 2 आ गया। थर्ड वैल्यू y इज इक्वल टू 2x माइनस 4/3। अब सोचते हैं थोड़ा और क्या ले सकते हैं हम लोग। -1 लिया था, अब हमें चाहिए इधर -6 चाहिए। ओके, -6 आ चुका था एक बार। 3 चाहिए। हम लोग वहां पे 3 ले सकते हैं क्या? हाफ लेंगे तो 3 आएगा, नहीं चलेगा। और क्या ले सकते हैं? जस्ट 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 एनीवन? यस। सो अगर मैंने यहाँ पे लिया था 5 तो आ गया 10। इफ आई टेक हियर 6 12, 12 में से 8 नहीं चलेगा। इफ आई टेक 7 7 14 10 नहीं चलेगा। इफ आई टेक 8 16 12 8 चलेगा। So 2 and this is 8 minus 4 upon 3. So that becomes 16 minus 4 upon 3. That is 12 divided by 3. This become 4. तो सब नंबर अगर स्टूडेंट्स आप देखते हो तो होल नंबर आ चुके हैं। ये तो इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 2 भी है। तो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, बट यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है, बात समझिए। ये नंबर ढूंढते ढूंढते आपको टाइम हो जाएगा। तो अगर इसके ऑप्शन में दूसरा कोई क्वेश्चन है तो डू इट। अगर आपको यही करना है तो फिर थोड़ा आपको शांत दिमाग से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगेन रूल क्या था? ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले हमें क्या करना है? एक्स को दूसरे साइड शिफ्ट करना है और 3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। ओके, अब बनाओ टेबल। अगेन एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई। ओके, देन अब हम लोग करेंगे इसे y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 3। डिनोमिनेटर में 3 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? 3 या 3 का मल्टीपल, तो लेते हैं 2। तो 4 प्लस 2 अपॉन 3 दैट इज 6/3। 3 टू जा 6 तो आ गया 2। सेकेंड लेते फिर से y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 3। -1 लेते हैं तो 4 प्लस -1 अपॉन 3। 4 में से 1 गया, बचा 3/3। आंसर इज 1। तो -1 1। एक और लेते हैं y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 3। अब क्या करें? 5 लेते हैं तो 4 प्लस 5 अपॉन 3 दैट बिकम 9 अपॉन 3। 3 1 जा 3 3 जा 3। सो अब आ गया आपका कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट किए। अब आपको क्या करना रहेगा? यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ। मुझे लगता है ग्राफ प्लॉट करना आप सबको आता है। ग्राफ पे प्लॉट करो ये पॉइंट्स लेके। वेरेवर दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, एक लाइन में ऐसी बनेगी, शायद जैसे भी बनेगी, एक ये ऐसी बनेगी। वॉट एवर उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर यहाँ पे x की वैल्यू चेक करनी है 1 है, y की चेक करनी है 2 है, तो आप नीचे वहां पे लिखोगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये पूरा जब तक आप नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मैं ग्राफ प्लॉट करके नहीं बता रहा हूं बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। तो आई नो एवरीवन कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है। दिक्कत यहाँ पे होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि वैल्यूज फाइंड आउट करनी नहीं आती। तो वैल्यूज लिख लो, कैसे फाइंड आउट करने का टेक्निक बताया मैंने। डिनोमिनेटर को चेक करने का, उसी का मल्टीपल आना चाहिए, उसके टेबल वाली वैल्यू वहां पे आनी चाहिए। ठीक है। कल भी मैं लेक्चर लूंगा। परसों आपका 2 दिन के बाद आपका मैथ्स 2 है, तो कल भी यही टाइम पे हम लोग फिर से मिलेंगे। आपके डाउट्स लेके रेडी रहना। यस। सो आई एम गोइंग टू रफ दिस वन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 शूट। ओके।
अब चैट बॉक्स में जाते हैं, जरा देखते हैं किस किस का क्या क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए। ओके, एक आध क्वेश्चन ले लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, देन हिस्टोग्राम पे जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हिस्टोग्राम के लिए बोल रहे हैं। यस, मे बी मेरे यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा कम है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम ले। मराठी मीडियम वाले, मला माहिती आहे तुम्हाला हिंदी मध्ये बोलतोय म्हणून मी। फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम से 2.2, यस, वो भी करेंगे अभी। चलो 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग पहले। ओके, सो द क्वेश्चन इज, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना है, तो देखो एक नंबर फ्रैक्शन में है और रिमेनिंग नंबर होल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हटाते हैं इधर से, तो थोड़ा ना सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, ईच एंड एवरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, या तो इसका एलसीएम करो। ये 2 से ना सबको मल्टीप्लाई करते, विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 2। सबको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2। सो क्या हो जाएगा, 2 2 जो 4, 4x² माइनस 2 2 जो 4, 4x प्लस 1, सबका डिनोमिनेटर आया 2 अभी। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं, 4x² माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब 2 डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 2। तो 0 इंटू 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0, नॉट 2। अब जिसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दो, हमेशा इक्वेशन यही फॉर्म में होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ax², पहले स्क्वायर आएगा, देन लेटर आएगा और देन नंबर आएगा कांस्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे रूल क्या है, फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू कांस्टेंट, यानी जो स्क्वायर वाला है और कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 4x² इंटू 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 4x²। यस, नॉन वर्बल फीडबैक, ओके, क्या दिया रजा, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, सम ऑफ द, क्या बोल सकते हैं हम लोग इनको, कुछ नालायक लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो चलो उनको हम लोग क्या करते हैं ना, मैं उनको म्यूट कर देता हूँ। यस यस, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट को और लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो गया 4x² इंटू 1, दैट इज 4x²। अब इसके दो फैक्टर हमें चाहिए। मिडल टर्म नहीं लिए, तो अभी मिडल टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है मिडल टर्म। मिडल टर्म कितनी है, -4x। अब रूल क्या है ना, यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 4m² आना चाहिए और जिसका एडिशन माइनस आना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आनी चाहिए, दोनों को ऐड करके माइनस आना चाहिए। तो क्या होगा वो, -2x और -2x। -2 इंटू -2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो +4 आता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस आती है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो आएगा 4x² -2x -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो ग्रुप करेंगे दिस एंड दिस। फर्स्ट टू में अगर देखोगे 4 है और 2 है ना, तो फैक्ट कॉमन क्या है 2x, तो आएगा 2x कॉमन। 4 में से 2 गया बचा 2, एक्स स्क्वायर में से x गया बचा x माइनस, ये तो 2x दोनों के दोनों बाहर आ चुका है तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, वहां पे 1 रहेगा। अब ये जो ग्रुप है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पे कॉमन होता है 1, माइनस साइन है। और ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज होती है, 2x, ओके, ये 2x जो माइनस था वो अंदर आके प्लस हो गया, और 1 जो प्लस था वो इधर आके माइनस हो गया। सो 2x माइनस 1 एंड अगेन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल है। क्या होता है जीरो प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो 1 को शिफ्ट किया वहां पे, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो 2x 1 आया वहां पे और x आया 1/2 यहाँ पे। सो नाउ दोनों के क्या हुए, सेम ही वैल्यू है, तो सॉल्यूशन सेट हमारा आएगा 1/2। दिस प्रॉब्लम सॉल्व। जस्ट अगर समझ में आया तो जस्ट टाइप यू इन द चैट बॉक्स। सो ये किरण सर करके जो बंदा आया है, ये घर में भी यही काम करते हैं, इनके घर में यही काम होता है सबके घर में, ये पूरी फैमिली यही काम करती है। सो इसके लिए इनको लगता है कि हम लोग यही काम कर सकते हैं। चलो क्या कर सकते हैं, इनके माँ बाप ने इनको यही सिखाया है। तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे, जिसको हिस्टोग्राम अभी हम करना है किसी को तो। सो विल डू हिस्टोग्राम। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो मैं उसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, दूसरे वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट कोई और। तब तक आप आपके डाउट्स डालते रहो, सब डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे और फिर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। यस, जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा वेट करो, बस मैं थोड़ा नेटवर्क सेट करूँ, बीच बीच में मुझे पता है कि नेटवर्क जा रहा है। यस, प्रॉब्लम सेट 3 का 12 सब करेंगे राजा। एक मिनट। एक बात याद रखना, जो जो सबसे ज्यादा मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं एमसीक्यूज में, तो एमसीक्यूज अगर आपको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको वैसे के वैसे ही पहले छोड़ दीजिए। जो आ रहा है पहले उसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़िए। नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप पहले ही सॉल्व करते हो और वहां पे कटिंग हो जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कॉपी की हुई है वहां पे। सो ऐसे मत कीजिए, जो जो आ रहा है उसको पहले सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि फटाफट आपका टाइम बचेगा। और भले ही उसके लिए जगह छोड़नी है तो हम लोग जगह छोड़ सकते हैं। यस, इट विल बी सेट। प्रॉब्लम सॉल्व। if screen is visible type V, yes, will go ahead। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, सबको तो लिंक भेजी थी लेकिन कुछ ही लोग आए हैं, कुछ लोग मैच देख रहे हैं, चलेगा, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग। आ, एक क्वेश्चन ना बहुत, एक मिनट राजा, मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, बहुत टाइम से क्वेश्चन भेजा है स्टूडेंट ने।
ओके, प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 12. Term number 12. Okay, the sum of first p terms of an AP is equal to sum of q terms. Show that the sum of p plus q is 0. ये हॉट्स का प्रॉब्लम है. यस, हम लोग इसको करते हैं. अभी पहले क्या करते हैं, पी टर्म्स है, एपी का क्वेश्चन है. एपी का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is equal to sum of first q terms. तो सम फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, 2-3 साल पहले आया था और सभी बोर्ड में, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी. तो पहले बोला है सम ऑफ पी टर्म्स. पी टर्म्स है तो एस क्या करेंगे, पी लिखेंगे, जहां जहां पे एन है दैट इज पी. 2a प्लस p माइनस 1 एंड देन डी. जस्ट मल्टीप्लाई करते, इसको ऐसे ही रख देते इक्वल, या तो मल्टीप्लाई कर लेते. चलो, p बाई 2a प्लस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू डी, पी डी इंटू डी 1. सो दिस इज एस पी. अब उसने क्या बोला है नेक्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट बोला है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स. क्यू टर्म्स तो p के जगह पे q कर देते सिर्फ, q बाई 2 दैट इज 2a प्लस qd माइनस d. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. कंडीशन क्या बोली है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ये और ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो एस पी इज इक्वल टू एस क्यू. दिस इज गिवन, दोनों इक्वल है. तो इक्वल यहाँ पे शो करते हैं, p अपॉन 2, वैल्यू पुटअप करते हैं, 2a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू यहाँ पे q अपॉन 2 दैट इज 2a प्लस क्यू डी माइनस डी. अब स्टूडेंट्स ना, दोनों का डिनोमिनेटर तुम लोग देखोगे, दोनों साइड 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के बाहर बचा है p. तो ब्रैकेट में से हर एक वैल्यू को ये मल्टीप्लाई करेगा, p इंटू 2a 2ap, p इंटू p दैट इज अ p स्क्वायर d, और ये आएगा पी डी. वैसे q को मल्टीप्लाई होगा 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी. ओके, ये इक्वल था, इसको इक्वल शो किया है. और फिर क्या करना है इसे, फिर हमें क्या करना है, इसको एक साइड शिफ्ट करना है. तो आएगा 2ap देन a, 2a वाले बाजू बाजू में लेते हैं, देन 2aq दूसरे साइड जाएगा, इट बिकम माइनस. देन आएगा p स्क्वायर डी, q स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे, q स्क्वायर डी माइनस पी डी, और ये आएगा वहां पे प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0. अब क्या क्या कॉमन है, कॉमन लेते हैं. पहले में से कॉमन आएगा 2a, तो आएगा p माइनस क्यू. दूसरे में से कॉमन है d, तो आएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. और थर्ड में से कॉमन है माइनस डी, सो यहां पे भी आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, तो अंदर की साइन चेंज. अब इसको ना यहीं पे रखते, क्यों रखते देखते हैं, क्योंकि आगे क्या करना है, थोड़ा ये जब कंफ्यूजन होता है तो उसको छोड़ के 2-4 लाइन छोड़ दो. कंडीशन क्या बोली आगे, शो दैट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0. सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू, यानी इनके जगह पे क्या लिखना है, p प्लस क्यू. तो यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और डी आएगा. ठीक, यानी ये वैल्यू 0 आनी चाहिए. तो ये 0 कैसे आएगी देखते हैं, यहाँ पे ये आ सकता है क्या, चेक कर लेते हैं. यहाँ पे आएगा 2a p माइनस क्यू. अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे d है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है मिडल में, तो ये क्या आएगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू.
माइनस डी, पी माइनस डी। अब स्टूडेंट्स अगर प्रॉपरली अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू दैट इज कॉमन, तो उसको बाहर लेते हैं, पी माइनस क्यू। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2a माइनस डी, देन पी प्लस क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस डी। कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आया p माइनस क्यू। जो बिगर ब्रैकेट है, बिगर ब्रैकेट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, बिगर ब्रैकेट में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। तो ये डी को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, डी को बाहर लेते हैं। तो 2a माइनस डी, तो फिर क्या बचेगा, p प्लस क्यू, और यहाँ पे है कुछ नहीं है, डी बाहर आ चुका है, तो दिस बिकम माइनस। ओके, सो ये p प्लस क्यू यहाँ पे प्लस है, उसको दूसरे साइड शिफ्ट करते, 2a माइनस डी, p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू आ चुकी है 0, और यही इक्वेशन इधर नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p प्लस क्यू बाई 2, इसकी वैल्यू है 0। कहां से मिला, ये थर्ड नंबर दे देते, फ्रॉम थर्ड। अगर किसी भी इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर होता है 0। योर सम सॉल्व, हेंस प्रूव। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इफ अंडरस्टूड जस्ट टाइप यू इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब ना थोड़ा डाउन साइड से आते हैं। विच वन यू वांट, यही फिर से यस। तो स्टूडेंट्स क्या है ना, ये यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस, प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑलरेडी वी सॉल्व, मुझे लगता है। यस, जस्ट ए मिनट ना, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे, लेट मी चेक। 1.4, यस। शीतल आज 2.2। शीतल 2.2 में से कौन सा चाहिए आपको, क्वेश्चन नंबर बोलो। 2.2 अब भी करा है मैंने। चलो 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सम और करा था, सिक्स्थ वन। प्रॉब्लम सेट 3 का 13। अच्छा, थर्ड वन करना है। प्रॉब्लम सेट 2.2 का 3 करते हैं। प्रॉब्लम सेट 2.2 का थर्ड क्वेश्चन, यस। पेपर एकदम सिंपल आने वाला है, थोड़ा मेहनत करो, स्ट्रेच करो खुद को। पेपर इजी आएगा, लेकिन उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट मिनट, हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके स्टूडेंट, नेटवर्क थोड़ा इश्यू हुआ था, सो विल स्टार्ट। जस्ट अ मिनट, शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड।
यस यस, जस्ट अ मिनट। प्रॉब्लम सेट 313 सब कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड ना शेयर नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, whiteboard is visible, type V in the comment box. 2.2 question number 3. It is of quadratic equation, that is 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मैंने रूल बताया था, क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी जो स्क्वायर के साथ है और जो सिर्फ नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2y² इंटू 13। सो दिस बिकम 26y²। ओके, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसके दो फैक्टर चाहिए। मिडल टर्म क्या है हमारे पास, 27y। तो मल्टीप्लीकेशन करके 26 आना चाहिए और एडिशन करके 27 आना चाहिए। ऐसे नंबर क्या है, 26 वन जा 26, 26 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आता है, ऐड करोगे तो 27 आता है। सो जस्ट 2y² प्लस 26y, और दोनों पॉजिटिव है तो 1y लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिखो 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया 2y, y प्लस 13। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ गया तो 1 कॉमन होता है, y प्लस 13। माई इंटरनेट हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज। तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 13, शिफ्ट दैट साइड -13, और 1 को पहले शिफ्ट करेंगे -1 होगा, फिर 2 को शिफ्ट करेंगे 1/2 होगा। देन यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन सेट, दैट इज -13 और -1/2 सॉल्व। Understood? Just type U in the comment box. Yes. Problem set 3, question number 13. बहुत टाइम से क्वेश्चन की डिमांड है, अब सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 3, सम नंबर 13। यस, ओके। अब भी हम लोग ने किया था, ये सेम क्वेश्चन है राजा। अभी जो हम लोग ने P प्लस Q वाला किया था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जहां पे P के जगह पे M लिखना है और Q के जगह पे N लिखना है। रिमेनिंग पार्ट इज एज इट इज। अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, कौन सा सॉल्व करना है फातिमा? सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं है तो अभी आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी है, आप जाके देख लो। सिर्फ आप P के जगह पे M लिख दो, N और Q के जगह पे N लिख दो। M टर्म, इफ द M टाइम्स ऑफ M टर्म थोड़ा अलग है, जस्ट आई विल सॉल्व। चलो, वहां पे सम था, यहाँ पे टर्म है, सॉरी, विल डू। चलो कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इफ M टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 एंड D। तो कौन सी टर्म बोली है उसने, mth टर्म बोली है। तो Tm इज इक्वल टू A प्लस m-1 D। ओके, इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म। अभी n टाइम्स n टर्म तो हम लोग लिखते हैं Tn, ये दूसरा है। nth टर्म निकालनी है, n-1 एंड D। तो यहां पे क्वेश्चन बोला है उसने m टाइम्स m टर्म, m टाइम्स m टर्म्स इज इक्वल टू nth टाइम n टर्म। तो m इंटू टी एम की वैल्यू हमारे पास ये है, जस्ट पुट अप द वैल्यू a प्लस m-1 एंड d। n एज इट इज है, tn की वैल्यू है n प्लस n-1 एंड d। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ए एम, एम से तीन सबको मल्टीप्लाई करना है, प्लस एम इंटू एम, एम स्क्वायर, एम इंटू -1 माइनस एम, ब्रैकेट के बाहर डी है, उसको ऐसे ही रखा है फिलहाल, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। सेम दिस साइड ऑल्सो, ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे डी है, सो ए एम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, यहाँ पे भी होगा ए एन, डी से मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब सब वैल्यू एक साइड शिफ्ट करते लेफ्ट हैंड साइड, ए एम माइनस ए एन, ओके, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, और आएगा माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं ना, इसका ग्रुप करते हैं हम लोग, ग्रुप करके कॉमन लेते हैं 1 2 एंड 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टू में क्या कॉमन है हमारे पास, ए कॉमन है, तो आएगा एम माइनस एन। दूसरे में क्या कॉमन है, डी, दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नेक्स्ट में भी क्या कॉमन है, माइनस डी है, तो अंदर की साइन चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स इफ यू ऑब्जर्व मिडल टर्म, मिडल वाला ब्रैकेट देखते हैं तो वहां पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी। सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, एम प्लस एन और एन माइनस एन, आइडेंटिटी यूज की हम लोग ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व 1 2 3 कॉमन टर्म्स है तीनों, तो हम लोग लिखेंगे एम माइनस एन, इधर आएगा ए बचा, फिर बचा डी, फिर बचा एम प्लस एन, और बचा है माइनस डी। अब क्या कर सकते हैं ना, लास्ट सम में जैसे किया था हम लोगों ने, ए डी को कॉमन ले लेते हैं, तो डी को मैंने कॉमन लिया तो आया एम प्लस एन माइनस 1। तो दिस इज द इक्वेशन 1। क्वेश्चन क्या बोला उसने, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी 0, m प्लस n टर्म, टर्म करनी है, सो t m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 और d, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर तुम लोग देखोगे प्रॉपरली, जो डाउन साइड में इक्वेशन 1 बनाया मैंने, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, हमेशा ना प्रोविजन होती है इसके लिए ना, जगह छोड़ देने की। तो m-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 अपॉन m माइनस एन, तो 0 अपॉन m माइनस एन क्या हो जाएगा, 0। सो a प्लस डी और m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो a प्लस डी एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a को, इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 आ गया फ्रॉम 1, तो t m प्लस एन की वैल्यू हो गई 0, दैट इज हेंस ट्रू। इजी ना, इजी है, थोड़ा उसमें हमें टाइम लगता है। जस्ट मिनट ना, वन पर्सन, एक जन कोई तो यहाँ पे आया है, उनसे बात करता हूँ, आप फटाफट चैट बॉक्स में डालिए, आगे आपका क्वेश्चन लूंगा। चलो, अंडरस्टूड, जस्ट टाइप यू इन द कमेंट बॉक्स।
रिज्यूम बैक। चलो फटाफट लेते हैं। आई हैव, मेरे पास 20 मिनट है, मेरे को दूसरे भी लेक्चर्स हैं, तो फटाफट आप बोल दो कौन से है दिस क्वेश्चन। फातिमा आस्क क्वेश्चन 1 मार्क्स का, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन सीक्वेंस। First term sequence, find the first term of the sequence. So it is given that Tn is equal to 4n, Tn is equal to 3n plus 1. Tn is equal to 3n minus 1. So स्टूडेंट अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो सब कुछ करना नहीं है, n की जगह पे 1 फाइंड आउट पुट अप करो, और जहां जहां पे 1 है 1 पुट अप करो। तो T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 माइनस 1, T1 इज इक्वल टू 2। तो योर फर्स्ट टर्म इज 2। वो फॉर्मूला आया, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, खत्म हो गया आपका सम सॉल्व। ओके, वन मोर क्वेश्चन। यस, अरम बार्टी, क्वेश्चन इज, जस्ट लेट मी चेक, फोटो इसका प्रॉपर आया नहीं है। विच वन राजा? एक आपने भेजा है मीडियन वाला। देर आर 2 क्वेश्चन, तो आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए? अच्छा, दोनों चाहिए आपको, ओके ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई विल शेयर द स्क्रीन, तो आपको भी क्वेश्चन दिखेगा सामने। ओके, सो द क्वेश्चन, question is the travel distance is 24 kilometer with the speed of 4 kilometer per hour. B start 1 hour late than A and he covers the same distance in 4 hours. Draw the graph of their journey. Find when and where B will meet A. Okay. A travels a distance 24 kilometer with the speed of 4 kilometer per hour. Okay. पहले हम लोग उसका एक ना डायग्राम बनाते हैं। A ने स्टार्ट किया, the distance is of 24 kilometer and the speed, इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम कितना लगा होगा? 6 आवर्स लगे इसको, ठीक है। एंड बी स्टार्ट 1 आवर लेट देन ए, बी ने उसके 1 घंटे के बाद चालू किया। एंड ही कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर, 4 घंटे में उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अभी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय ए, मैंने डायरेक्टली किया ना, तो फॉर्मूला उसका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 24 अपॉन 4, 1 जा 6 जा, तो इसको 6 आवर्स लगे। बी क्या बोल रहा है यहाँ पे? बी बी स्टार्ट 1 आवर लेट, 1 घंटा पीछे से चालू किया, एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर। तो बी के लिए, फॉर बी डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और टाइम लगा उसको 4 आवर्स। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट जर्नी एंड फाइंड व्हेन एंड वेयर ए एंड बी विल मीट। तो आई हैव टू थिंक दिस वन, कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका? वेट, लेट मी, so this one is the distance and here this is time. So this is of 4, 8, 12,
16, 20 and 24. Okay. So time again, this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That is in hours and this is in kilometer. So the A ने start किया and 6 and 24. He will start and he will meet him. A. B ने 1 घंटा लेट चालू किया. ओके. और उसने सेम डिस्टेंस जाने के लिए उसको कितने टाइम लगे? 4 आवर्स लगे, यानी 5. 1 घंटा लेट स्टार्ट किया, यानी बी का आफ्टर 1 आवर उसका चालू होता है, यानी बी के यहां से चालू होगा, मिलेगा यही पे हो. Okay, this is a graph of B. Find when after 4 hours. Draw the graph of their journey. ये ग्राफ उसका हम लोग ने बना दिया. When, कब मिलेंगे वो? After 5 hours. After 5 hours दोनों मिलेंगे. Okay, and where A and B will meet. कहां पे दोनों मिलेंगे? दोनों ये 24 किलोमीटर यहीं पे मिलेंगे. Okay, चलो नेक्स्ट. Practice at 1.4 last sum. Sorry, Practice at 1.4 last sum. 1 point, जस्ट अ मिनट, 1 मोर सम. इसका एक सम और करना है, ये करके लेते हैं. See find the median of the following data, that is a 50. Find the value of P and Q if the sum of all frequency is 90. So table दिया है हमारे पास. That one is a 20 to 30, that is P. 30 to 40, that is 15. Then 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and then 70 to 80, and then 80 to 90. And it is given that for P 15, 25, then 20, then Q, then 8, and then 10. Okay, these values are given. Okay. So this one is a frequency. We have to find cumulative frequency here, and this is a class interval. Question is that median is 50. Median दिया है 50. Okay. And sum of all data, summation is summation of Fi, that is 90. तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो दिया है ना उसका कितना सम आया देख लेते हैं. So this is 15 plus 25, that is 40. This is 60, 70, 78. So this is 78 plus P plus Q. So here summation of Fi, it is 78 plus P plus Q. But already this is given 90 is equal to 78 plus P plus Q. तो 78 को हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो P plus Q is equal to 90 minus 78. तो P plus Q that become 12. ये आया इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है ना, मीडियन करना है. तो पहला P का P एज इट इज आएगा, P plus 15. देन ऐड करो तो आएगा 40 plus P. क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाते हैं हम लोग. दिस वन मल्टी 60 plus P. देन ऐड किया तो आया 60 plus P plus Q. देन इसे ऐड किया आया 68 plus P plus Q. And last one that becomes 78 plus P plus Q. Okay. So for the median लेना है तो फॉर्मूला होता है फॉर मीडियन, क्या आता है? n/2.
तो n है 90 ऑलरेडी दिया था बाय 2, दैट इज 45 ऑब्जर्वेशन। अब 45 कहाँ पे आ रहा है? ये 60 वाले में आ रहा है, दिस ग्रुप, ये ग्रुप में आ रहा है। सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 50 to 60। तो अभी पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है। तो मीडियन का हमें पहले फॉर्मूला चेक करना है। ओके, सो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n by 2 minus cf upon summation of fi means n into h। तो इसमें से कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? हमारे पास है l, लोअर क्लास लिमिट दैट इज 50, n by 2 ऑलरेडी आ चुका है 45। जो ग्रुप होता है उसके क्रॉस में जो होता है दैट वन इज अ cf होता है। तो cf आया हमारे पास 40 प्लस p, h मीन्स हाइट, 50 और 60 का डिफरेंस है 10 आ गया सब, और समेशन ऑफ fi 90 है। तो मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, मीडियन उसका 50 है। 50 इज इक्वल टू एल की वैल्यू है, एल भी 50 है, प्लस n बाई 2 है 45। सी एफ कितना आया हमारे पास? 40 प्लस पी, ब्रैकेट में रखो इसको, अपॉन 90 इंटू 10, 0 0 कैंसल। ये 50 को उधर शिफ्ट करो, 50 माइनस 50 आ गया 0, इधर बचा है 45, ब्रैकेट ओपन करो, 40 माइनस पी अपॉन 9। ओके, तो ये तो हो गया इधर 0, 9 भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर बचा हमारे पास 5 माइनस पी। तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस पी, तो p इज इक्वल टू 5। p की वैल्यू आ गई 5। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 है, इक्वेशन 1। सो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 12। तो इसमें वैल्यू पुटअप करो, 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, क्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 5, क्यू की वैल्यू आ गई 7। सो द p इज 5 एंड q इज 7। और देखो Q एंड P को ऐड करते हो 12 होता है, और यहाँ पे था 78, 78 प्लस 12 90, और टोटल 90 बोली थी। सम सॉल्ट, अंडरस्टूड? यस। ओके, सो बस अभी 10 मिनट्स में वाइंड अप करना है बेटा हमें, क्योंकि अभी मेरा भी लेक्चर है दूसरी जगह, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। 3.3 का 8th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आई एम गोइंग टू, बच्चे इंपॉर्टेंट देखो स्टूडेंट्स, अभी ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मत सोचो, अब जितना है ना, अगर आपने कुछ करना है तो सॉल्व एग्जांपल करो, और आपने जितनी प्रैक्टिस की है उतनी प्रैक्टिस करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के ऊपर भरोसा करो। आपने मेहनत की है, पेपर बहुत इजी आने वाला है, ये समझ के चलो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, देखो पेपर बहुत इजी जाएगा। अपने इंपॉर्टेंट के पीछे मत करो, लोग रात भर आपको कुछ भी बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, मत करो। जो आपने मेहनत की है बस उसी के ऊपर आप ध्यान रखो, देखो पेपर बहुत इजी जाने वाला है। कल आप बोलोगे कि अरे इजी पेपर था एकदम। सो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो ये एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखो, आप एपी में जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आता है, 3 टर्म्स बोलेंगे तो लेना है टर्म्स a माइनस डी, देन टेक a एंड देन टेक a प्लस डी। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोले तो लेना a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, और a प्लस 3d। एंड इफ दे बोला है 5 टर्म्स, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, और a प्लस 2d। यही टर्म्स लेना है आपको, ये टर्म्स लेने की वजह से क्या होगा ना, सम बहुत इजी हो जाएगा। अब कैसे, देखो ये क्वेश्चन, फाइंड फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सम इज 12। अब क्या बोला है, हम लोग लिखेंगे लेट फोर consecutive terms of an AP be
4 बोला है ना, तो क्या आएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो इसका सम बोला है 12, तो a माइनस 3d ऐड करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 12 बोला है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहीं पे कैंसिल हो रही है, 3d प्लस 3d गया, ये d और d गया, तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस a प्लस a प्लस a, दैट इज 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 बाय 4, 1 जा 3 जा, a इज इक्वल टू 3। ओके, और क्या बोला है, सम ऑफ फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो थर्ड टर्म है a प्लस डी और फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, इसका सम कितना बोला है 14। तो क्या होगा, a प्लस a दैट बिकम 2a, d प्लस 3d दैट इज 4d इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 4d इज इक्वल टू 14, तो 4d इज इक्वल टू 14 और 3 टू जा कितना होता है 6, माइनस हो गया, तो 4d इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, हमें टर्म्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म जब वैल्यू पुट अप करो, दैट इज a माइनस 3d, a की वैल्यू थी 3 माइनस 3 और d की वैल्यू है 2, तो 3 का 3 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, साइन इज अ बिगर वन। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, a माइनस डी, a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 2, तो दैट इज 1। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है a प्लस डी, that is 3 plus 2 that become 5, and the fourth term है a plus 3d, so that is 3 plus 3 or 2, so that become 3 plus 6, that become 9. So therefore required 4 terms are minus 6 1 5, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 होगा, इट बिकम माइनस 3, सॉरी minus 3, then 1, then 5, and then 9. These are the required terms. Okay, तो टर्म्स याद रखना, ये 4 चीजें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 साक्षी घेऊन टाकलं मी तुझं। ओके, तो लास्ट, अब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लास्ट अभी सिर्फ टिप्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान दो। और आपके पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दैट इज हायर वेटेज के लिए है, तो मैक्सिमम ट्राई करो कि इसी में से आपको जितना आता है प्रैक्टिस करो। मेन मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा है ना सॉल्व एग्जाम्पल देखने, सॉल्व एग्जाम्पल में से बहुत सारे क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जाम्पल में से बहुत सारे क्वेश्चंस ना एक्टिविटीज के लिए आ सकते हैं। तो एक्टिविटी के लिए 2 और 3 यानी ऐसे 5 मार्क्स की एक्टिविटीज आने वाली। तो टेक्स्ट बुक में जितनी भी एक्टिविटीज जो है उसको गो थ्रू करो, या तो उसको पेंसिल से आपने लिखा है तो उसको रफ करो, फिर से सॉल्व करो, 5 मार्क्स फिक्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये टेक्स्ट बुक में से ही आने वाला है, यानी 1 2 और 3 देखोगे तो 29 मार्क्स का है, 4 और 5 11 मार्क्स का है। वो थोड़ा मे भी प्रॉब्लम सेट से आ सकता है, लेकिन 1 2 3 तो प्रैक्टिस सेट और सॉल्व एग्जाम्पल से ही आएगा। तो अगर आपको मैथ्स में डिफिकल्टी है, थोड़ा स्ट्रेच करो, सॉल्व एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट को गो थ्रू करो, 29 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले कुछ सॉल्व किया हुआ है तो जस्ट गो थ्रू करो, 2 घंटे और थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा शांत हो जाओ, 2 घंटे और करो, 10:30 11 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के एक बार गो थ्रू करो। फॉर्मूलेज है, मीन मोड मीडियन के फॉर्मूले, स्टैटिस्टिक के फॉर्मूले, फाइनेंशियल प्लानिंग के फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले, जरा गो थ्रू करो और सुबह एकदम कॉन्फिडेंस से जाओ। पेपर हाथ में आने से पहले आंखें बंद करो और खुद को एफर्मेशन दो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं पेपर बहुत अच्छा लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ और मैं मार्क्स भी लेके आने वाला हूँ। तो और उसके बाद अगर पेपर आता है और एक आध दो क्वेश्चन अगर आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो ब्रीदिंग टेक्निक है, आंखें बंद करके ब्रीथ करो, 1 2 3 4 काउंट करते वक्त 1 2 3 4 काउंट करो, स्टॉप करो, 1 2 3 4 काउंट करते करते थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग छोड़ो।
तो ऐसे 3-4 सेट करोगे तो आपका माइंड शांत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, जो क्वेश्चंस आते हैं पहले लिखो, लिखने के बाद उसको एक बार चेक करो, और फिर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसके ऊपर टाइम लगाओ। आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, और मैं आपको बोलता हूँ कितना भी पेपर कुछ भी होने दो, 1.5 आवर में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। पेपर बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन उसके लिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज मेहनत करो, अच्छे से पेपर लिखो। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पेपर आपका 2 बार चेक होना चाहिए। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम लोग प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन लिख के रॉन्ग करते हैं। तो जब पेपर चेक कर रहे हो, एक एक कैलकुलेशन चेक करो, वही आपके मार्क्स बढ़ाने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। एकदम शांत रहो। आपने बहुत मेहनत की है और आपको कल का पेपर बहुत ही इजी जाने वाला है। कल शाम को फिर मैं आपको मैसेज डालूंगा, कल शाम को 6:30 फिर मिलेंगे मैथ्स 2 के लिए। अगर कल नहीं मिले तो परसों हम लोग जरूर मिलेंगे। कल आपको शाम को मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।